your mind at all. हम जावा में कर रहे हैं, आपको JS अच्छा लगता है, JS में करो, if you're a full stack developer, you should be very comfortable on JS. Write your data structure on JS, I don't mind. Feel free to use Python, feel free to use C, feel free to use C++, feel free to use any other programming languages for that matter. आप कुछ भी use करो, I really don't care. Till the time you are able to solve problems, till the time your test cases are getting passed, we are all on the same page. ठीक है? जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आज स्टार्ट करूंगा, दिस इज गोना बी वेरी जेनेरिक टू ऑल द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग पाइथन, C++ एंड JS स्टफ लाइक दैट. आप इसको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करो, द आइडिया विल स्टिल रिमेन द सेम. सिंटैक्स माइट चेंज, सिंटैक्स चेंज हो सकता है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा. जो कॉन्सेप्ट आप यहां पढ़ रहे हो, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज इन ऑल द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग C++. जहां पे भी कुछ चेंजेस होंगे, those changes I keep on telling you. Again, practice part is going to be yours. I will be sharing you a lot of other problems. अब सारे हर टाइप के प्रॉब्लम क्लास में देखना फिजिकली पॉसिबल नहीं है. I will be showing you couple of few variations in the class. I will be sharing you out with documents which contains good problems which have already been seen in the interviews before. सारे जो भी प्रॉब्लम शेयर करूंगा, सारे इंटरव्यू पूछे हुए प्रॉब्लम. कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं होगा जो इंटरव्यू में पूछा होगा. And even if you want, I will even mention the कौन सी कंपनी में पूछा हुआ क्वेश्चन है. और मेजॉरिटी हम लोग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के प्रॉब्लम बनाने की कोशिश करेंगे, because those are good level problems, and let's see how much we will cover out in the class. Again, प्रॉब्लम सॉल्व करना, अप्रोच करना आपकी रिस्पांसिबिलिटी होगी. मैं क्लास में बस आपको वेरिएशंस ही दिखा सकता हूं प्रॉब्लम्स के. सारे प्रॉब्लम्स क्लास में करना फिजिकली पॉसिबल नहीं है. Asking doubts will also be your responsibility. I will be available throughout the entire day. Even if you feel stuck, feel free to write your messages on Discord or push your doubts in the channel. If other people know, they will help out the other people. If not, I will be there all the time available. Another thing, I am here in the campus itself for entire 2 months. If you want to sit around for projects, or you want to sit around for dev, or you want to sit around for data structure or computer coding, feel free to do that. I don't mind. Okay? I'm there to help you out and telling you again, I will give you everything you need for your interviews, everything for technical interviews. But again, the point would be कि approach आपको करना पड़ेगा, practice आपको करनी पड़ेगी. वो मैं आपके लिए नहीं करूँगा. बस इतना काम हुआ that I'll be giving you few stuff to research, few stuff to code, few stuff to think about. But point is that you are the one who's going to approach that up. वो वाला काम मैं आपके लिए नहीं कर सकता. I'm really. ठीक है? अब हम लोग थोड़ा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं. There are few things that you already know. There are few things which are a gray area for you, and there are few things that you don't know entirely. आपको वही पढ़ाया ही नहीं. ठीक, तीनों चीजों को हम लोग स्क्रैच से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, and we'll see how much we can turn around on. और हर एक कॉन्सेप्ट को हाँ तब तक नहीं बोलेगा जब तक आपको कोई चीज समझ में नहीं आती. I will wait for you. If you don't get it, I'll keep on explaining. But do not say yes until you do not understand the topic. जब तक आपको कुछ चीज समझ में ना आए, आप पूछते रहिए. हाँ तब तक मत बोलिए जब तक genuinely आपको समझ में ना आए. ठीक है? OOPS start करें. We'll not spend a lot of time on OOPS, but I'll be giving you interview questions related to OOPS. मैं आपको थोड़ा बहुत broad में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. और वो सारे interview questions डिस्कस करता हूँ जो generally आपके undergrad students से पूछे जाते हैं. जैसा आपको बताया, कुछ टॉपिक्स पढ़े होंगे, कुछ टॉपिक्स नहीं पढ़े होंगे, और कुछ टॉपिक्स शायद ग्रे होंगे, पढ़े होंगे, याद नहीं होंगे. ऐसा भी. ठीक, तो स्टार्ट करते हैं. OOPS के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं और बात करते हैं कि एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है. एंड अगेन this entire conversation is going to be more of a conversation rather than me barking around in front of you and you just be listening. That's not going to happen. It will be more of a discussion. You will be speaking something we'll discuss. Even if it's wrong, we'll rectify that up. But again, be a part of the discussion. आप discussion का part रहिएगा. जो भी आपके काम में आता है, जो भी आपको पता है, बोलिएगा. Again, even if it's wrong, we'll rectify. ठीक है? If I ask you people, अगर मैं जैसे आप इंटरव्यू में गए, आपसे पूछा, what do you mean by object oriented programming? How do you describe object oriented programming? पहले इसके बारे में बात करते हैं. OOPS के कॉन्सेप्ट फिर देखेंगे. पहले ये बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है, पहले उसके बारे में बात करते हैं. Anybody? We make real life facility like classes and make the object of that classes. Okay. Is that all? Is that all that consists in object-oriented programming? Like I need a definition जो हर एक language पर apply हो, और मैं उस definition को देखते ही बता सकूं कि ओह अच्छा ये तो object-oriented है.
Sir, where all the work is done through classes and objects only. Awesome. So any language out of which सारा काम जितना भी आप काम कर रहे हो, all the things that are happening in the programming language, if that is happening with the help of classes and objects, उस language को मैं object oriented programming language बोलता हूँ, right? Now if that is the case, अगर ये ऐसा case है, now my question to you is, अब थोड़ा ध्यान से question सुनिए, this is where your interviewer starts to trick you around, okay? Now my question to you is, how many of you see C++ before by the way? Okay, a lot of people might have been C, right? मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछता हूँ, is C++ an object-oriented programming language? Yes. But the people who say yes. Hold on, I'm asking not about C. मैं C के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ. I'm talking about C++. And I'm asking, how many of you think that yes, this is an object-oriented programming language? कितने लोग बोलते हैं कि object-oriented programming language? मैम जोर से बोलो. It's an object-structured programming language. वो object-oriented programming language नहीं है. अब पहले point समझिए कि point बोलने का मतलब क्या है. Point बोलने का मतलब ये अपने screens पे देखिए. अगर आपको एक basic C++ का कोड भी लिखना हो, मैं बहुत basic तरीके से लेके चल रहा हूँ. Join नहीं हो रहे? Oh, permission की बात कर रहे हो. अब थोड़ा देख लो हो गया हो. अब थोड़ा पॉइंट समझिए, C++ में या C में ऐसा कोड लिखना बिल्कुल पॉसिबल है. कैसे कोड के बारे में बात कर रहा हूँ? मैं ऐसे कोड के बारे में बात कर रहा हूँ. अब either you write it in main or void main, that really don't care. But the entire point is that I could create a main without even creating a class. मैं बिना क्लास बनाए भी main method बना सकता हूँ. और उस main method में if I start writing functions or if I start writing code, that will work absolutely fine. वो बिल्कुल सही चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी. If this is the type of the code that I'm writing, can I say this is object-oriented programming? Classes और objects वाला कोई concept तो आया ही नहीं. अब point समझिए, C++ को object-oriented ना बोलते, हम object-structured बोलते हैं. इसका कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि आपको object-oriented करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो. अगर आप इस वाले कोड को अगर देखो जो मैंने लिखा है स्क्रीन पे, आप उसको देखो. I am not using a object-oriented programming language or the object-oriented features of the programming language. अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ, मैं बिल्कुल कन्वर्ट कर सकता हूँ. मुझे कन्वर्ट करने में भी दिक्कत नहीं है. All I needed to do was do this. ये भी चलेगा. This is also absolutely fine. क्या मैं इस सब कोड को बोल सकता हूँ कि object-oriented है? Yes. Yeah. Does that make sense? Another thing that you need to another thing you need to keep in mind is that if I ask you that is it anyhow possible that your Java is object-oriented programming language? No, sir. The people say yes. कितने लोग yes बोलते हैं? Now that depends. That depends. It's object-oriented, but it's not completely object-oriented programming language. And there is a one major reason behind it. What's that? Wrapper class. If you look at primitive data types somehow or the other way does not belong to any class. वो किसी class को belong नहीं करते हैं. For the people who are already there in the last class, उनको I think मैंने Java 8 के बारे में थोड़ा सा intro दिया होगा. और उस Java 8 में मैंने आप लोगों को एक चीज का intro और दिया था, something which you call it as Wrapper classes. So wrapper classes मैं just एक बहुत brief intro दे रहा हूँ for the people who are not there. Basically कहने का मतलब ये है कि since the time you have been using programming languages, you would be coding it something like this, where you say int a equals 100. Now this makes a lot of more sense. The reason being you are creating an integer value, storing a value inside it. But the point here is, if you look at this int, the int as a keyword which you talk about, or which you call it as a primitive data type. In primitive data type को store करने के लिए हमारे पास कोई container class नहीं है, इसके लिए कोई class नहीं बनी हुई है. ये already एक static तरीके से जस्ट एक बनाया हुआ है. आप इसको यूज करिए. ये किसी क्लास को बिलोंग नहीं करता. But if I want, I could have converted my entire Java code into an object-oriented programming code. And again, thanks to your wrapper classes. हर एक primitive data type के लिए, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूँ. हर एक primitive data type के लिए आपके पास एक wrapper class पहले से बनी बनाई आती है. For example, if you talk about a wrapper class for integer, I would have created an integer to look something like this as well. मैं ऐसे भी एक इंटीजर को बना सकता था. ये भी मेरे लिए एक इंटीजर वैल्यू ही है. बट आप दोनों को डिक्लेयर करने का तरीका देखिए.
एक बन रहा है प्रिमिटिव डेटा टाइप से, एक बन रहा है इंटीजर ऑब्जेक्ट की तरह। और मैंने आपको लास्ट क्लास में ये भी बताया था that there exists a default package which you do not need to import, and the name of the package is java.lang. If you look around on all the wrapper classes, जितनी भी wrapper classes को अगर आप देखो तो आपको दिखेगा वो सारे के सारे wrapper classes एक common package से आती है, और उस पैकेज का नाम है java.lang पैकेज। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, हाँ प्रोविजन नहीं है, क्या करते हैं? Now have a look as I was explaining कि आप अगर इस integer को देखो, first of all this integer is a class integer. Another thing, this class comes out of the box from java.lang, which is a package which you do not need to import. That comes pre-imported in your code, every code that you write. Now again, if you want to go ahead and import and make an explicit import statement, well, go ahead and do that. But again, उसकी कोई necessity नहीं है. Even if you don't do that, even if you skip that part out, that's fine. But again, keep that in mind. Java.lang is one common default package which comes pre-imported for you, right? अब अगर मैं object-oriented programming की language के बारे में बात करूँ, so in industry you have seen two, which is Python and JS. Python and JS दो ऐसी programming languages हैं जो completely object-oriented हैं. आप उसमें variable बनाइए, आप उसमें function बनाइए, आप उसमें ऑब्जेक्ट बनाइए, आप उसमें और इनफैक्ट जस्ट टू गिव यू even more idea, the people who are coming from JS background उन लोगों ने ऐसा सिंटैक्स भी देखा होगा, जिसको आप एरो फंक्शंस के नाम से भी जानते हो, if I'm not mistaken. अगर आप देखो तो what exactly is that you are actually containing a function inside a variable. How is that possible? Because you are treating your functions to look like objects. आप अगर primitive data type को भी देखो, functions को भी देखो, code को भी देखो, that entire code goes without even looking around, वो एकदम object oriented programming की तरह काम करता है। आप लोगों ने इनफैक्ट कुछ ऐसे कीवर्ड्स भी देखे होंगे, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, जस्ट JS के बारे में बात करें तो लॉट ऑफ डिफरेंट डेवलपर्स आर हियर, आपने इसको भी देखा होगा, NaN, नॉट अ नंबर। अगर आप NaN को भी देखो तो ये NaN भी एक क्लास को बिलोंग करता है, which is called as an integer class. अगर आप इसका टाइप ऑफ करके देखें तो आपको पता चलेगा इसका टाइप ऑफ भी नंबर आता है, ये भी नंबर क्लास को बिलोंग करता है, and everything that you do in that programming language is actually belong to a class. अब इसमें भी आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में एक चीज और जाननी चाहिए, that there are two types of programming language. एक तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में तो हम ऑलरेडी बात कर चुके थे. There is one more type out of which your programming languages are classified, which is called as statically typed or dynamically typed. Statically typed के बारे में जब आप बात करते हो, Java is a very good example of statically typed, or even C++ for that matter is a good example of statically typed. Statically typed का मतलब ये होता है कि जब आप कोई डेटा बनाते हो, for example look around here, so if you look at line 6 or even if you look at line 7, before you create a variable you have to define the type of the variable that is there inside. Doing something like that in Python and JS is not possible. अगर आपको ध्यान होगा तो आप JS में ऐसा भी करते हो कि आपने बनाया A में आपने लिखा 100, then आपने A में लिखा string, फिर आपने A को change कर दिया, then you go around and say A equals true, and then you go around and say A equals 3.14. Now अगर आप इस container को देखो, इस container की shape change हो रही है depending upon what value you are keeping inside that container. I should actually not have called it a container, it's a variable. अब मुझे एक बात बताइए, is it somehow better than statically typed? Like if I ask you what's better, is statically typed language better or dynamically typed language better? Which one's better? Statically. Why? Confusion come up. Now again, specifically where the full stack developers, why? अब इसी question को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो that if there already was JavaScript, तो TypeScript क्यों बनाएंगे? कितने लोगों ने TypeScript पे काम किया है पहले? अच्छा कितने लोग TypeScript का नाम ही पहली बार सुन रहे हैं? So TypeScript is basically a superset of JavaScript. वो एक उससे better programming language है. बोला जाता है कि better programming language है. उसमें और भी features हैं. But अगर आप TypeScript और JavaScript को compare करो, syntax में कोई भी change नहीं है. Every valid JavaScript code is a valid TypeScript code. Like you see that way. But TypeScript में एक चीज है जो additional है. वो क्या? कि आप उसमें type specify कर सकते हो.
And if you look around on a lot of frameworks, including Angular, अगर आपने किसी ने Angular पे काम किया होगा, तो Angular में JavaScript use करना ही possible नहीं है. आपने JS का कोड नहीं लिखा, उसमें TypeScript का कोड लिखा. और वो TypeScript का कोड फिर later on जाकर compile होता है, वो Webpack में convert होता है, फिर उसके JS बनती है and stuff like that. But the entire point here is जिस language पे हम काम कर रहे हैं, that is a statically typed language, and in industry, अगर आप industry के point of view से देखें, so statically typed language is the one which is most preferred. The reason being इसमें error, आपका कोड error prone नहीं होता. आपको ये नहीं होता कि रन टाइम पे आपको कोई weird सी वैल्यू मिली और वो टाइप में कन्वर्ट ही नहीं हुई, ऐसा नहीं होगा. And a lot of organizations prefer to work on TypeScript and specifically because you're a full stack developer, I highly recommend कि अगर आपने JS देखा है तो आप TypeScript को भी explore करना थोड़ा सा start करिए, because a lot of you, once you will go in the organization, you will shift from JS to PS. That is something which is gonna happen. बहुत सारे including Google or including our organization for that matter, हम भी TypeScript पे ही काम करते हैं. अगर आपने कभी Apple की वेबसाइट अगर देखी होगी, आप उसको इंस्पेक्ट करिएगा, आपको पता चलेगा वो पूरा जो कोड है वो पूरा Angular पे बना हुआ है. We work on Bean Stack as well. तो आपको दिखेगा कि हम भी एक्चुअली में TypeScript पे कोड लिखते हैं ना. Lot of developers basically prefer working on TypeScript. The reason being उसमें टाइप सेफ्टी थोड़ा सा बेटर तरीके से परफॉर्म होगी. Now coming back, irrespective of आपके पास statically typed है, dynamically typed है, if it's a object-oriented programming language, there are few fundamental concepts which remain constant throughout all the programming languages. जिसमें से छोटे में आप लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है the concept something which called it as 4 pillars of hoops नाम से आपने concept पढ़ा हुआ है. इसमें आपके पास 4 basic concepts आते हैं which is followed by pretty much all the other programming languages, starting from encapsulation. पहले encapsulation के बारे में बात करते हैं, या encapsulation से पहले abstraction के बारे में बात करते हैं, then we'll move on to encapsulation. तो सबसे पहला जो आपके पास pillar आता है, we call it as abstraction. Anybody would like to give a quick comment on abstraction, even if it's wrong, that's fine. And don't give me bookish language. Okay, so let's reframe the question. Okay, this question will reframe it. Okay, so interviewer आपसे ये पूछेगा कि what do you mean by abstraction? Just explain as me. So इसको थोड़ा सा और fine tune करते हैं. Explain the concept of abstraction to a 5-year-old. एक 5 साल के बच्चे को abstraction का concept समझाइए. या अपने इंटरव्यू please. Sir, like for an example, if there is a machine Okay. that does a work, Okay. so we don't know what things are happening inside it. 5 साल का बच्चा मशीन सुनते ही वो आउट हो गया. ठीक है. चलो मशीन कहना नहीं भैया. Sir, एक toy. Okay, toy. Okay. So that is doing some work और कुछ भी एक्शन कर रहा है, लेकिन हमें उसका अंदर का कुछ नहीं पता क्या एक्शन है. बहुत jargon use कर रहा है इसमें. A 5-year-old will be lost by the time. Yes sir. अगर कोई स्विच वो ऑन ऑफ कर रहा है जैसे लाइट. Exactly. अगर आप स्विच के बारे में देखें, आप ऐसे अज्यूम कर लीजिए कि 5 साल का बच्चा है, आपने बोला स्विच को ऑन करके आ, ऑन किया. अगर आप उससे पूछे कि तूने स्विच ऑन किया तो क्या हुआ, तो क्या बोलेगा? लाइट जली. अब आपने बोला उसको ऑफ कर दो, उसने ऑफ किया. फिर आपने पूछा क्या हुआ, तो बोला लाइट ऑफ हो गई. How do you explain abstraction about this for 5-year-old? हो गया, ठीक है, समझ गया वो लाइट ऑफ हो गया. नहीं पता. Exactly. So अगर आप उसको ये समझाएं कि I don't know what's happening, but the moment I switch it off, ये लाइट ऑफ हो जाती है. The moment I switch it on, लाइट ऑन हो जाती है. अब behind the scene क्या हो रहा है मुझे भी नहीं पता ना तुम्हें पता है. और इस पूरे concept को हम abstraction के नाम से जानते हैं. So abstraction, if you see it that way, it's nothing but hiding implementation details in such a way कि यूजर सिर्फ उतना ही इंटरेक्शन करे आपके हार्डवेयर से जितना उसके लिए नेसेसरी है. इसी को और लेने से मैं समझाऊं, एक बूढ़े आदमी को सोचिए. एक बूढ़ा आदमी जो है अपने पास रेडियो लेके चलता है. आप उससे अगर बोलेंगे इस रेडियो का नॉब ऑन कर दो तो क्या बोलेगा? चैनल चेंज हो गया. बट क्या एक्चुअली में चैनल चेंज हुआ है? फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है. उस फ्रीक्वेंसी से चैनल चेंज हो गया. But again, the implementation detail that person does not know, and that is exactly what you call it as abstraction. अब इसी concept को अगर मेरे को programming में introduce करना हो, how do I do that? I want to hide implementation details from the user in such a way कि he only interact as much as what is required from the hardware. Functions, even more better way of explaining functions.
इससे भी एक प्रिमिटिव चीज आती है जो आपको एब्स्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। एनीबॉडी? एक्सेस मॉडिफायर। अब बहुत दूर मत जाइए, अब एक्सेस मॉडिफायर को देखिए। अब एक्सेस मॉडिफायर भी तो यही काम करता है। फॉर इंस्टेंस, जस्ट टू गिव यू अ लिटिल आइडिया, assume ऐसे करते हैं that let's say what I did is I created a class and I mentioned this class as to be a test class. ऐसे वाले टेस्ट नाम से एक क्लास बनानी है। Now inside this class I could have properties and these properties could be marked anything that I feel like to be. For example, मेरे पास दो integer values थी called num1 and num2. मेरे पास दो integer values थी num1 num2. अब ध्यान से ये समझिए, this access modifier changes from programming language to programming language. In general, if you see, in majority of the programming languages, there are three access modifiers to work around with, which are what? Private, Private, public. public. ठीक है। C++ के बारे में बात करें तो यही तीन एग्जिस्ट करती है। JS की बात करें तो यही तीन एग्जिस्ट करती है। और Python के बारे में बात करें तो यही तीन एग्जिस्ट करती है। But in Java, there are four access modifiers that you have to keep in mind. एक तो public, private, protected, ये तो ठीक है। Apart from that, there is one more, which you call it as default. If you look at that on your code, अगर आप अपने कोड को देखो, अगर आप पहली वाली लाइन को देखो, this access modifier is called as default. जो आपने लिखा है, इस access modifier को ही default कहा जाता है। Default का मतलब है कि जब आपने किसी primitive data type के आगे या किसी भी data type के आगे आपने कोई access modifier नहीं लिखा, so Java by default consider it to be default. But again, even if you want to change, अगर आप उसको change करना चाहो, तो आप उसको change कर सकते हो, not a problem. अभी काम कैसे करते हैं अभी बात करते हैं। But you can mark it private. Either you mark it private, that is also fine, or you mark it public, that is also fine, or you mark it protected, that is also fine. But please keep in mind there is fourth type where you do not write anything in front of it. This is called as default. Please keep that in mind. चार access modifier। अब इनका डिफरेंस क्या है? इस डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले डिफॉल्ट के बारे में कुछ क्लास में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट के बारे में, बिकॉज़ वो आप लोगों ने बहुत कॉमनली देखा है। अब प्राइवेट को थोड़ा समझिएगा, प्राइवेट काम कैसे करता है। अब लुक हियर, इफ अज्यूम, थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे, assume you have created two properties called num1 and num2 in a class. आपने क्लास में num1 num2 नाम से दो प्रॉपर्टीज बनाई, and now what you wanted to do is you wanted to access these properties outside the class. आप इस क्लास के बाहर आकर आप इन प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हो, उसमें भी कोई इशू नहीं है। हाउ वुड यू डू दैट? आप अपने मेन वाले मेथड पे आएंगे। मेन वाले मेथड में फॉर दैट क्लास जिसके लिए आपको एक्सेस करना है, आप उसके लिए एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अभी क्लासेस क्या होती है, ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, अभी आते हैं इस वाले पार्ट पे, बट जब एनकैप्सुलेशन समझना हो तो विल कम बैक टू दिस पार्ट। सो लेट्स से मेरे पास एक क्लास थी, उस क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने की जैसे ही बात मैं यहाँ से इसको एक्सेस करने जाऊं, इसको टेस्ट डॉट नंबर को, तो आपको दिखेगा ये आपको एरर देना स्टार्ट कर देगा। जस्ट गो अहेड एंड रीड द एरर। इट सेज दैट योर नंबर हैज अ प्राइवेट एक्सेस इन द क्लास। क्लास को उसको प्राइवेट एक्सेस दिया गया है। प्राइवेट एक्सेस एक्चुअली मींस कि आप इसको क्लास के अंदर यूज करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे ही क्लास से बाहर आए और आपने इसको यूज करना स्टार्ट किया, यू आर नॉट परमिटेड टू डू दैट। आपको एक्सेस नहीं कर सकते। अब पॉइंट ये है कि क्लास के अंदर मैं इसको यूज कर सकता हूं, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लास के अंदर यूज करने का मतलब क्या हुआ? फॉर इंस्टेंस आई हैड अ पब्लिक मेथड कॉल्ड add, let's say. This add takes in nothing, but it only returns the addition of num1 and num2. Now here you might see कि I can access num1 and num2 inside the class. मुझे inside the class access करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। Inside the class मैंने कोई मेथड बनाया, उस मेथड से मैंने प्रॉपर्टीज को यूज किया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। But again, please keep that in mind. If I had to access it outside the class, I do not, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, I do not have a direct access to the database. मेरे पास उस डेटा का कोई डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। Now यहीं से आपके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक कॉन्सेप्ट और आता है, नॉट वेरी श्योर इफ यू नो अबाउट दिस और नॉट, बट आप लोगों ने इसके बारे में जरूर सुना जरूर होगा। अब इस पॉइंट को समझिए, इसी प्रॉब्लम पे आइए, जो आपको कोड दिख रहा है उसी कोड को देखिए। एंड माय प्रॉब्लम वाज दैट आई डिड वांटेड टू डू दिस। मुझे करना था, मुझे इसकी वैल्यू को प्रिंट करवा के देखना था कि इस वैल्यू में एक्चुअली मेरा क्या हुआ है। आई वांटेड टू सी दिस।
How can I do that? So my data is marked private, but still outside the class, I did wanted to see the value of number. How can I do that? You have to make a public getter. You have to make a public method getter. We can create a public method. हम इसके लिए एक मेथड बना लेते हैं और इस मेथड का नाम सुनिए जरा. इस मेथड को हम getters के नाम से भी जानते हैं. So getter methods are those public methods which returns the value of the data member but not directly. वो डायरेक्टली आपको एक्सेस करने के लिए नहीं देगा, but you can create it using a public method. और वो दिखते कैसे हैं? वो कुछ ऐसे दिखते हैं. मैं getter method दिखा रहा हूँ आपको. तो अपने getter method को देखिएगा. So this is your getter method. So मैंने दो methods बनाए हैं यहाँ पे. इन दोनों methods को जरा ध्यान से देखिए. इन दोनों methods क्या करते हैं? If you look at on the getter method, आपको दिखेगा these getter methods do not. यहाँ से पहले एक बार English syntax को देखिए. Getter methods do not take any arguments, but both the methods do have a return type, and the return type is exactly the type जो उस data को return करता होगा. For example, number and num2 are marked integers, so both the methods do return back an integer value, and you see कि वो return क्या कर रहा है? वो return कर रहा है num1, and the other function is returning num2. That means now if I come down here and rather than अब ध्यान से देखिएगा इस वाले कोड को. Rather than me directly accessing num1, I would instead be saying, hey, get num1. आपको ideology समझ आई? Ideology क्या है? You do not have a direct access to the data. Please keep that in mind. But you can find an alternative way of creating a public method, and that method only does is that it takes a value, reads that value, but not directly. That's very important. ऐसा भी पॉसिबल है, अब इसको भी सुनिएगा जरा ध्यान से. ऐसा भी पॉसिबल है that I could change the value of the data. मैं इस डेटा को चेंज भी कर सकता हूँ if I wanted to. What do I mean by that? All I mean is I could again create a public method, and those public method will be taking new values and setting the old values of the data. And these methods are also called as setter methods. इस मेथड को भी देखिए. अपने getters को देखिए. The starting two functions are your getter methods. ये आपके getters हैं. और लास्ट के जो दो मेथड आपको दिख रहे हैं ये आपके setter methods हैं. Setter methods और getter methods के बीच में डिफरेंस देखिए. Getter methods do not take any arguments but return a value. Setter methods on the other hand takes arguments but do not return anything. ध्यान से getters को भी देखिए, setters को भी देखिए. Again, listen what I am saying. Getter methods do not take any arguments but returns a value. Setter methods, on the other hand, take arguments as a new value which is to be appended but do not return anything. And the only thing that these setter methods does is take a new value and update the old value of the data. तो अगर आप old value को देखें तो left hand side में जो लिखा हुआ है that is the old value, and right hand side में जो लिखा हुआ है that is a new value. अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इसलिए लग रहा है बिकॉज़ आपके पैरामीटर का नाम और आपके डेटा का नाम सेम रखा गया है. अगर आप यहाँ पे देखें तो उसने पैरामीटर का नाम भी नंबर लिया है. If you wanted to update the value of num1 to A or num2 to B, you can actually do that. That's not a problem. वो आप अपडेट कर सकते हो. That name is updated. I don't mind that. But ध्यान ये रखिए, left hand side is the data that you are updating, which is your property, which is equals to the new value which I receive in the parameter. And how do I set the value? Just to give a little idea. इसको सेट कैसे कर सकते हैं? इसको सेट करने के लिए the only thing that I could do is I could say, hey, test dot set num1 to 10, and then test dot set number to 2, or let's say 20. So now I get new values of 10 and 20, and now what I could do is I could actually can look back on these values by simply getting those values back. Now if I run this back up again, you should be able to see a valid output. आप फिर वापस से कोड को देखिए और गेटर्स और सेटर्स को समझने की कोशिश करिए और एब्स्ट्रैक्शन को समझने की कोशिश करिए कि एब्स्ट्रैक्शन एग्जैक्टली होता क्या है. एब्स्ट्रैक्शन मैं फिर आपको डेफिनेशन वाइज दिखा रहा हूं, कोड में देखते रहिएगा. एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली मींस इज हाइडिंग द इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स by only showing or giving users what is necessary for updating the code.
आपने पब्लिक सिर्फ वही चीज रखी है जो यूजर को दिखेगा, जो यूजर को नहीं दिखेगा आप उसको एक्सप्लिसिटली प्राइवेट भी मार्क कर सकते हो इफ यू वांट टू डू दैट। अनदर थिंग, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसा भी होता है that inside a class we even sometimes mark our methods also to be public. Majority of the time you will see these methods marked public, but ऐसा भी होता है कि हम methods को भी privately declare करते हैं। Meaning, what do I mean by that? ऐसा भी possible हो सकता है कि I go ahead and create a method called add, which returns a integer value, and the only thing that it does is it returns num1 plus num2. But ऐसा भी हो सकता है, as I said, that this method is explicitly marked private. ऐसा भी हो सकता है। आप इस मेथड को देखिए, ये मेथड प्राइवेट है, मतलब एक क्लास से बाहर एक्सेस नहीं हुआ। ऐसा क्यों कर रहे हैं? बाय द वे हमने इसी मेथड को प्राइवेट क्यों डिक्लेयर किया? इसका कोई यूज है? अगर इसका यूज देखूं, इसका क्या यूज है? हमने किसी मेथड को प्राइवेट क्यों बनाया? डेटा को प्राइवेट बनाना मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि हमारे डेटा में डायरेक्ट एक्सेस ना हो। मेथड्स को प्राइवेट बनाने का क्या सेंस है? तो बेसिकली ऐसे मेथड्स को हम एक और टर्मिनोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, आप लोगों ने सुना होगा इसके बारे में, समथिंग व्हिच वी कॉल इट एज हेल्पर मेथड्स। हेल्पर मेथड्स का नाम समझते हो? हेल्पर मेथड्स का काम बेसिकली ये होता है जो आपको इंटरमीडिएट ऑपरेशंस करने में हेल्प करता हो, जो किसी क्लास को मेंटेन करने के काम में आता है। ये मेथड्स ऐसे मेथड्स हैं जो आपको कैलकुलेशन करने में हेल्प करते हो, बट इनका पूरी क्लास से कोई लेना देना नहीं है। ये जस्ट एक हेल्पर मेथड है, ये आपको काम करके काम कंप्लीट करके देते हैं, बट ये बस हेल्प करते हैं आपको कोड लिखने में। इनका एक्चुअली कुछ काम नहीं होता। इफ यू हैव एनी हेल्प, अब जब हम लोग डीएसए इंप्लीमेंट करेंगे, जब हम डेटा स्ट्रक्चर्स इंप्लीमेंट करेंगे, यू विल सी अ लॉट ऑफ हेल्पर मेथड बीइंग क्रिएटेड। जब भी, ध्यान से सुन लीजिए, जब भी आप कोई हेल्पर मेथड बनाएं, ऑलवेज हैव अ हैबिट ऑफ मार्किंग दोस हेल्पर मेथड्स टू बी प्राइवेट। हमेशा हेल्पर मेथड को जनरली हम लोग प्राइवेट ही रखते हैं, और ये आपके प्राइवेट का काम होता है। प्राइवेट समझ में आया? प्राइवेट का मतलब क्या है? प्राइवेट एसेंशियली मींस you can use that method or you can use that property within the class itself. You cannot access those properties and those methods outside the class. इस पूरे concept को हम abstraction के नाम से भी जानते हैं। ID implementation details are only showing appropriate things to the user, which is made best for the user. जो भी उसको use करना है वो use। Any questions till now? कुछ पूछना है तो please पूछो। Look at the code. If there is any line of code which does not make sense, please shoot. ऐड को बाहर एक्सेस कैसे करें? नहीं कर सकते ना, पॉइंट ही वही है। हेल्पर मेथड का मतलब क्या हुआ? अब देखो फॉर एग्जांपल किसी को समझो, ये रिटर्न कर रहा है कोई वैल्यू। हाँ, अब देखो इसका पॉइंट समझो। पॉइंट सिंपल ये है कि मेरे पास एक पब्लिक मेथड हो सकता था। ये पब्लिक मेथड होगा मेरे पास, मैं बोलता गेट स्क्वायर सम। अब ये क्या करता है? ये आपको सम का स्क्वायर करके देता है, और ये भी आपको एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। अब मेरे को एक्चुअली में, अब मुझे एक्चुअली में स्क्वायर सम चाहिए था। व्हाट आई कुड हैव डन इज आई वुड हैव कॉल्ड ऐड, गॉट द सम एंड आई वुड हैव स्टोर्ड दैट इनसाइड सम, और मुझे इसका स्क्वायर करना था, तो रिटर्न करने के लिए मैंने कर दिया सम इनटू सम। अब पॉइंट समझो, जो मैंने ऐड बनाया, ये मैंने दूसरे पब्लिक मेथड को कैलकुलेट करने के लिए बनाया है। इसका खुद का कोई एक्चुअल यूज नहीं है, ये क्लास के अंदर ही यूज होता है। That is why I am calling this method to be helper methods or helper functions. Helper functions बाकी कैलकुलेशंस करने में हेल्प करते हैं, बट इनका क्लास से कोई लेना देना नहीं है। ये जस्ट एक हेल्पर मेथड है, हेल्प करते हैं कैलकुलेशंस करने में। That's it. अगर ऐसा कोई सिचुएशन आपको बनाना है, then there is a very much validate situation that a function or a method could be marked explicitly private mark. इसका क्लास से कोई लेना देना नहीं है, और ये क्लास से बाहर एक्सेस भी नहीं होगा, और करने की जरूरत भी नहीं है। Any other questions? Please shoot. So private समझ में आ गया। Private does not get an access outside the class. इसी का exact opposite है what you call it as public. Public का मीनिंग होता है कि it could be accessed anywhere in the entire code. आप इसको कोड में कहीं पे भी एक्सेस करो, inside the package, outside the package, anywhere you feel like, if something is marked public, anywhere you feel like you can access that out.
बट अब इसको डिफॉल्ट के तरीके से समझिए, डिफॉल्ट किसको बोलते हैं? डिफॉल्ट में और पब्लिक में कोई डिफरेंस नहीं है. There is only one difference between public and default, and that is that default is only accessed within the package. वो पैकेज के अंदर एक्सेस होगा. पैकेज के बाहर अगर आपने उसको एक्सेस करने की कोशिश करी, पैकेज के बाहर एक्सेस नहीं होगा. ऐसे एक्सेस मॉडिफायर्स को हम डिफॉल्ट भी बोलते हैं. बस इसको ध्यान रखिएगा, इसको यूज करने की जरूरत नहीं है. अगर आपसे कभी इंटरव्यू में पूछे दैट व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड डिफॉल्ट, ओनली थिंग दैट इज अ मेजर डिफरेंस. Public can be accessed outside the packages also, but default cannot be accessed outside the package. तो package के बाहर access नहीं होगा. ठीक? अब private समझ में आ गया, public भी समझ में आ गया, default भी समझ में आ गया. एक चीज बची है जो आपको समझनी है, वो है protected, जिसको मैं अभी नहीं समझाऊंगा. जब inheritance करेंगे तो मैं इसको और डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा कि इसको यूज कैसे करें. Anybody who has any issues with these three keywords, private, default and public? So anything to ask issue? Yes sir. Sir, can we make private methods static? Yeah, if you want you can. If you just want to access it inside the class, you can. अच्छा, इसमें मैं एक चीज और बता देता हूँ आप लोगों को. बाय द वे FYI, एक चीज का ध्यान और रखिएगा. इफ यू आर वर्किंग इनसाइड द क्लास, अगर आप क्लास के अंदर काम कर रहे हो, there is a very high probability that you will see a lot of coders, including me, writing a keyword called this. अब आप इसको this की तरीके से समझना चाहो, इसको हम Python में self के नाम से भी जानते हैं. आइडिया सेम है. आइडिया ये है कि अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे. If inside the class you are writing number anywhere and you want to be explicitly perfectly telling कि मैं इसी property के बारे में बात कर रहा हूँ, you can even write this to look something like this. दोनों में difference कुछ नहीं है, फिर ध्यान से समझो. दोनों में difference कुछ नहीं है, बट ये लिखने का एक better तरीका है. That's it. अब अगर आप, अब थोड़ा ध्यान से सुनिए, अगर आप C++ पे काम करो, तो C++ में it is compulsory to write this, but Java में ऐसा नहीं है. Java में आपको this लिखना है लिखो, नहीं लिखना है मत लिखो. That is up to you. Same goes with Python, same goes for JS. JS में भी कोई compulsion नहीं है this लिखने का, और Python में भी कोई compulsion नहीं है self लिखने का. If you wanna write it. This is for your own good, for understanding the code. But even if you don't wanna write it, skip that out. But C++ में ऐसा possible नहीं है. C++ में you explicitly do need to write this keyword. जब तक आप नहीं लिखोगे नहीं चलेगा. Sorted? So either you write this or you don't write this. This typically means I'm talking about the variables which are declared inside the class. जिसमें मैं इस num1 और इस num2 के बारे में बात कर रहा हूँ. That is what you call it as this dot num1 and this dot num2. The num2 or num1 defined inside the class is the variable that you're talking about, and this is the keyword which helps you access those variables. इस पूरे concept को abstraction के नाम से भी जाना जाता है. Any questions? कुछ पूछना है प्लीज पूछो. हमने पूछ लिया, कितने लोग सॉर्टेड है यहाँ पे? Awesome. ये हो गया आपका abstraction. इसको हम abstraction के नाम से जानते हैं. Highly implementation details only showing the necessary details to the user depending upon what you are creating. Another thing or another concept pillar और आता है. अब ये तो बहुत basic चीज है. अब complications हो गए लास्ट के दो पिलर में. मैं आते ही स्टार्टिंग के दो इजी वाले पिलर्स को हम लोग फिगर आउट करते हैं. So there is another pillar of hooks which you call it as encapsulation. अब थोड़ा encapsulation को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. This is very broad if you see that. Encapsulation is basically, अच्छा, anybody would like to give a very quick definition of encapsulation? Anyone? What? Exactly. So encapsulation को अगर आप देखें, as the name suggests, it's a capsule. It's a place where multiple things exist, and those multiple things are your properties and methods. Encapsulation को अगर बहुत easy तरीके से समझाने की कोशिश करूँ, encapsulation is wrapping your properties and methods in one common single unit, which is called as class. एक class में आप properties को और methods को एक साथ लिखो. इस concept को हम encapsulation के नाम से जानते हैं. For example, best example right in front of you, look at class test. Test class एक ऐसी class है जिसमें आपने property
और उन्हीं प्रॉपर्टीज से रिलेटेड मेथड्स को एक ही सिंगल यूनिट में लिखा है और आपने उसको क्लास बोला है। इस पूरे प्रोसेस को हम एनकैप्सुलेशन भी बोलते हैं। फिर से सुनिए, एनकैप्सुलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिंग योर डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस और मेथड्स इन वन सिंगल कॉमन यूनिट कॉल्ड क्लास। उसको हम क्लास Any questions? ये encapsulation. मतलब इससे ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है. Encapsulation is one unit called class. Those classes will have few properties. Those classes will have few methods, and these methods and properties would somehow be interrelated to each other because they belong to the same common class. अगर आपने एक class में सारी properties और methods लिखे, वो properties और methods आपस में somehow the other way related होंगे, और आपने उसको एक common unit में लिखा और उस unit को अपनी class बोला है, इसको class. क्लास का अगर मैं एक बहुत लेमन डेफिनेशन अगर आपको देने की कोशिश करूं, आपने अगर जो भी डेफिनेशन पढ़ी है, ब्लूप्रिंट होता है, रन होता है, डोंट से दैट, क्लास कुछ नहीं है इसको एक और लेमन टर्म में आपको समझा है, सीन ब्रेक्स। यस, इधर देखिए, हाउ इज दैट पॉसिबल कि हर एक ईंट का लेंथ, विड्थ, डेप्थ एग्जैक्टली सेम है? हाउ इज दैट? We have a frame. Because like mold servers, like template servers, your class is exactly the same. आपका क्लास नहीं है। Class is nothing but a template or a way of creating real life entities. Real life entities को बनाने के लिए जो template use किया जाता है उसको हम class बोलते हैं। और इस class से जो real life entities मिलकर बनती हैं उनको हम objects बोलते हैं। So object is nothing but a real life entity derived from the class, and class is nothing but a template or a way of creating real life entities or objects. That is what we call it as a class. उसको हम class. Sorted it? Now take a minute, go back on the entire code and tell me if you have any issues on encapsulation and abstraction. Because इसके बाद चीजें complicated हो जाएंगी। इसके बाद सब चीजें complicated है सारी। If you have anything to ask, please shoot. हम लोगों ने प्राइवेट देखा है, पब्लिक देखा है, डिफॉल्ट देखा है, encapsulation देखा है, abstraction देखा है, helper methods देखे, एक्सेस कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाते हैं, सारी चीजें देखी। क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो भी हम लोग देखेंगे। एक चीज और जो मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, because a lot of you people do not know what exactly this is, ठीक है? इसको प्लीज थोड़ा ध्यान से देखना। I am about to show you something. This might confuse you up, but if you are mentally available here, I am pretty sure आप लोगों को समझ में आ जाएगा मैं क्या समझाने की। थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस वाले पार्ट। ओके, रेडी? आर यू रेडी? Yes, sir. फिलहाल के लिए इन दोनों मेथड्स को मैं गायब कर रहा हूं जस्ट सो इट डजंट लुक टू मच क्लटर्ड। इसको मैं एक लाइन में शिफ्ट कर रहा हूं सो दैट अगेन थोड़ा सा क्लटर कम हो जाए। आपको रखना है इनको तो आप अपने कोड में रख सकते हो, बट अगेन जस्ट ट्राई टू मेक अ पॉइंट कि इनको हम हेडर्स एंड सेटर्स बोलते हैं, इनको हम एक साइड में रख के फिर हम लोग थोड़ा काम आगे स्टार्ट करेंगे। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। एवरीबॉडी प्लीज पे अटेंशन हियर। रेडी? Yes, sir. अब आपका काम होगा कि आपको कोड को देखना है और कोड को देख के आपको अपने लिए आउटपुट प्रेडिक्ट करना है। ध्यान से सुनना, जिसको आउटपुट आता हो चिल्लाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हाथ उठाइएगा जिसको आउटपुट आता हो, ठीक है? ध्यान से देखिएगा इसको। मैंने कहा ये एक काम कर लेते हैं और इसको पब्लिक मार्क कर रहा हूं मैं भी। Hold up. Look at the code very carefully. Use your common sense. And if you know the output, please raise up your hand. No need to shout. 2, 3, 4, 5, 6. Okay, coming to people. Sir, output 0, 0, 0, 0. Anybody apart from 0? Why is the output 0? This is called as default values. ये मैंने बताया था last class में. These are called as default values, and for every primitive data type, there is a default value already associated to it. अगर आप इसको रन करेंगे, तो मैंने इसकी वैल्यू कभी प्रोवाइड नहीं करी, बट आपका JVM या आपका कंपाइलर इसकी वैल्यू को प्रोवाइड करेगा और वो एक डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करेगा। If it's an integer, the value provided would be 0. This value would have changed. ध्यान से सुनिएगा,
This value would have changed if I would have changed the data type of the value. मैं अगर इसकी value का data type change कर देता, या एक काम कर लेते, इसको मैं हटा ही रहा हूँ फिलहाल के। अगर मैं इसका data type change कर देता तो आप इसके output को देखिए जरा। Output will come out में 0.1। यही value change हो जाती अगर मैं इसको boolean रखता तो, and what would be the output? False. इसका भी ध्यान रखिए। And again, we will come back to this. जब हम लोग ग्राफ्स वगैरह देख रहे होंगे या हम बिजनेस एक सेट बनाएंगे, then we'll come back to this again. बस ध्यान ये रखिएगा, if you haven't defined the value, अगर आपने value को define नहीं किया है, तो there is already a defined value for every primitive data type, which is also called as default values of the data type. ठीक, इसका भी ध्यान रखिएगा। Another thing, अब आते हैं major वाले चंक पे, और ये है जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग काम है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना स्टार्ट करें, ठीक है? इसको आप लोगों ने बहुत तरीके से पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा, और इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करते हैं, बिकॉज़ ये वाला जो टॉपिक है ये इंटरव्यू में बहुत आता है, और ये एक ऐसी चीज होगी जो आप में से बहुत ही कम लोगों ने देखी होगी, ठीक है? और इसको थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। जो भी अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है सेम इसी के अराउंड चीज में बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है? तो लिसन टू इट वेरी। So there is another pillar of proof जिसको आपने पढ़ा होगा पहले, something you should call it as inheritance. Inheritance के बारे में कितने लोगों ने पढ़ा है पहले वाले? ऑलमोस्ट सबने। If I have to ask you a very layman expression or a layman example, or example की छोड़ो, if I have to ask you a very layman definition of inheritance, how do you define inheritance? Hold on, let's talk about one, sir. The transferring of properties or methods from parent to children. It's actually not transferring, rather I should say accessing the value of the parent from the parent to the class, to the child. और इसी के अराउंड आपके पास दो कीवर्ड्स भी आते हैं, very interchangeably you can use them. Something you should call it as a parent class or a super class. और एक आपके पास चीज और आती है जिसको आप बोलते हो child class और sub class. You can name whatever you feel like. So basically, idea क्या है? Idea is reusability of code. If you have already written a code somewhere else, you can reuse that same exact code somewhere else if you want. So basically, situation क्या है? Situation ऐसा है that you have a class A, you can name it whatever you want. Just give you the idea. And you can inherit the property and method of class A, class B again, only if they are marked public. अगर उनको public mark दिया गया है, कोई डेटा पब्लिक मार्क किया गया है, कोई मेथड पब्लिक मार्क किया गया है, तो आप उसको एक क्लास से दूसरी क्लास में यूज कर सकते हो, और आई शुड से रीयूज कर सकते हो या रीएक्सेस कर सकते हो। ठीक, अब जो ये रीयूज और रीएक्सेस वाली बात बोली, इसी को मैं थोड़ी देर में कॉन्ट्राडिक्ट भी करूंगा, पर आप ये समझिए दैट यू हैव टू एक्सेस द पब्लिक प्रॉपर्टीज ऑफ द पेरेंट क्लास, और आई शुड से पब्लिक प्रॉपर्टीज एंड पब्लिक मेथड्स फ्रॉम द पेरेंट क्लास टू द चाइल्ड क्लास। दिस इज ऑल आई वांट। ठीक, नाउ ये दिखने में बहुत इजी लगता है, बट ये एक्चुअली में इजी है। ठीक, अब मैं दो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, दोनों ये तो बेसिक वाली चीज है, आपको ऑलरेडी पहले से पता होनी चाहिए थी, बट जस्ट शोइंग यू। ध्यान से देखिएगा इस पार्ट। अज्यूम, अच्छा पहले इस वाले लाइन पे आते हैं, लाइन 7 पे। So if you have to create an object, अगर मेरे को किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है तो उसका सिंटैक्स क्या होता है? How do I write or how do I create an object? Name of the class name, then variable name. or class name, then object name equals new class name, and then in this class name you make it look like a function, है ना? गलत। जो आपको राइट हैंड साइड में जिसको आप क्लास नेम बोलते हो, तो क्लास नेम नहीं बोलते, इसका नाम है कंस्ट्रक्टर। अबे हाँ, ठीक है, अब ध्यान से पहले इस पॉइंट को सुनिएगा, बिकॉज ये इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है। अगर आप कंस्ट्रक्टर के बारे में बात करते हैं तो पहले तो ये समझिए कि आपका जो कंस्ट्रक्टर है वो कंस्ट्रक्टर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक जिसका नाम आप देते हो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जो आपको ऑलरेडी इससे पहले दिख रहा था, और एक चीज और आती है जिसके बाद आप बोलते हो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों का डिफरेंस समझने से पहले आप ये समझिए कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रक्टर,
अरे मैं उसका दिखने का तरीका नहीं पूछ रहा हूं, मैं बोल रहा हूं काम क्या करता है ये। किसने बोला था कि क्लास नेम और कंस्ट्रक्टर नेम सेम होता है? अगेन देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट, जस्ट ट्राइंग टू टेक अ पॉइंट। हु सेड दैट? सर एक चीज मैं बता दूं, जेएस में सेम नेम ऑफ दैट ऑफ द क्लास होता ही नहीं। देयर इज अ प्रॉपर कीवर्ड कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। आपने इसमें जेएस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करी होगी तो पता होगा कि वहां पे कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम सेम नहीं होता। देयर इज appropriate keyword in JS called constructor। वहां पे कंस्ट्रक्टर नाम से कीवर्ड है, या फिर int नाम से कीवर्ड है ना, वहां पे कंस्ट्रक्टर नाम से कीवर्ड है which helps you create constructor of the class। Again just trying to make a point। coming back, अगर मैं कंस्ट्रक्टर के बारे में बात करूं, कंस्ट्रक्टर एग्जैक्टली करता क्या है? इनिशियलाइज। वेरी गुड। व्हाट डज इट इनिशियलाइज? ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करने का उसका काम होता ही नहीं है। ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज तो सिर्फ एक ही बंदा करता है या एक ही एलिमेंट करता है, JVM। आप पहले ये समझिए ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करने का मतलब क्या हुआ। अब मैं कुछ चीजें दिखा रहा हूं तो प्लीज ध्यान से देखिएगा, और कहीं पे नोट करना हो तो नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि दिमाग में एक चीज नहीं है। अब पहले ये देखिए कि जब आपने ये किया, जब आपने इसका ऑब्जेक्ट बनाया तो आपने इसका ऑब्जेक्ट कुछ इस तरीके से बनाया था। अगर आपको ध्यान दें, इस लाइन को पहले समझिए, इस लाइन को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। फ्यू थिंग्स। थिंग नंबर 1 और वन थिंग टू कीप इन माइंड, जब भी आप किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो, तो एवरी टाइम अ प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड देयर आर टू मेमोरीज व्हिच आर एलोकेटेड। आपको दो मेमोरीज मिलती है। एक पहले मेमोरी के बारे में बात करते हैं। देयर आर टू मेमोरीज एलोकेटेड, वन इज कॉल्ड एज अ स्टैक मेमोरी, हीप, और एक मेमोरी और एलोकेट होती है जिसको आप बोलते हो हीप मेमोरी। अब इन दोनों मेमोरीज का काम बहुत अलग-अलग है। स्टैक मेमोरी के बारे में हम लोग तब बात करेंगे जब मैं आपको रिकर्जन पढ़ा रहा हूँ, या जिस टाइम हम डीपी और बैक ट्रैकिंग पढ़ रहे होंगे तो हम लोग वापस आएंगे स्टैक मेमोरी पे। हीप मेमोरी का काम ध्यान सुनिएगा, हीप मेमोरी समझा रहा हूं और ये इसके बाद में कभी नहीं समझाऊंगा। हीप मेमोरी का सिर्फ एक काम होता है, सिर्फ और सिर्फ एक काम होता है कि आपके कोड में जितने भी लोकल वेरिएबल्स बने, ग्लोबल वेरिएबल्स बने, रेफरेंस वेरिएबल्स बने, या जितने भी ऑब्जेक्ट्स बने, या इन जनरल जितने भी वेरिएबल्स बने हैं जिनको स्पेस चाहिए, वो स्पेस एलोकेट करने का काम हीप मेमोरी करता है। What do I mean by that? If you look back on the code and if you look back on the main method, जैसे ही लाइन नंबर 8 चला होगा, एक्चुअली में हुआ क्या होगा उसके बारे में भी देखते हैं। आपके हीप मेमोरी में एक मेमोरी बनी है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं आपको बताऊंगा, अज्यूम कर लीजिए आपकी हीप मेमोरी है। इस हीप मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट बना हुआ, तो इस ऑब्जेक्ट का कुछ साइज होगा, वो साइज डिपेंड करता है कि आप किस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हो, किस हार्डवेयर के ऊपर काम कर रहे हो, कितने बिट्स का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या आपकी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है, सब लाइक दैट, आपका रैम कितना है, क्या है, कैसा है, साइज डिपेंड करता है। अनदर थिंग ये क्या करेगा, ये इस ब्लॉक का नाम लिख देगा टेस्ट, और इसको ना किसी रेफरेंस पर बनाकर छोड़ देगा। ये होगा इसका मेमोरी रेफरेंस। को अगर आप की यूजर्स के नाम से समझना चाहो तो ये आपका एड्रेस है जहां पर ये की मेमोरी का काम है, तो एड्रेस इस तरीके से। जैसे ही आपने ये लाइन लिखी, इसने एक टेस्ट ऑब्जेक्ट बनाया। ये टेस्ट ऑब्जेक्ट कहां बना? ये टेस्ट ऑब्जेक्ट बनाया हीप मेमोरी में। इस टेस्ट का एक मेमोरी लोकेशन है, और इस मेमोरी लोकेशन के अंदर आपने कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ मेथड्स यहां पर डिफाइन करके छोड़ दिए। ठीक। सेकंड थिंग कीप इन माइंड, जब आप कंस्ट्रक्टर के बारे में बात करते हैं, तो जो आपको अभी अपने कोड में जो हाइलाइटेड लाइन दिख रही है और जो राइट हैंड साइड पे आपको कंस्ट्रक्टर दिख रहा है जिसको आप क्लास नेम बोल रहे थे इससे पहले, ऐसे कंस्ट्रक्टर का एक स्पेसिफिक नाम और है जिसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब ध्यान से समझिए, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपने नहीं बनाया, जेवीएम ने बनाया है आपके लिए, क्योंकि आपने इसको नहीं बनाया। अगर आप इसको नहीं बनाते हैं तो जेवीएम आपके लिए बना देगा, बट अगर आपको खुद से भी बनाना है तो आप खुद से भी बना सकते हो। व्हाट डू आई मीन? हैव अ लुक। इफ आई वांट, I could have, अब ध्यान से अपने कोड को देखिए, if I want, I could have created my own default constructor and I would have printed a statement saying test class object create. अब अपने आउटपुट को देखिए जरा। अब ये पहले ऐसा बनके आता नहीं था, ये मैंने बनाया है, ये मैंने खुद बनाया है। मैं चाहता
तो इसके अंदर और भी कुछ कोड लिखना चाहता हूं तो मैं कुछ और भी कोड लिख सकता हूं। व्हाट डू आई मीन? ऐसा भी अब याद सुनिए, किसने यहाँ पे बोला था इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज नहीं करता है आपका कंस्ट्रक्टर। याद रखिए क्या इनिशियलाइज करता है। क्या मैं यहाँ पर आकर ऐसा नहीं बोल सकता था? अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बात करिएगा। अगर मैं यहाँ से प्रिंट करता टेस्ट डॉट नम1 तो ये क्या प्रिंट करके देता मेरे को? जस्ट अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया है, 0 और डिफॉल्ट वैल्यू। ये डिफॉल्ट वैल्यू किसने असाइन करी थी इसको? अरे भाई ठीक है ना, ये डिफॉल्ट वैल्यू किसने असाइन करी थी इसको? JVM ने कंपाइल कर। मुझे ये नहीं चाहिए था, मुझे अब इसकी डिफॉल्ट वैल्यू 0 नहीं -1 चाहिए थी। मैं क्या करूं? मैं अपने कंस्ट्रक्टर में आके ये बोल सकता हूं कि हे माय num2 is going to be -1 now and my num1 is also going to be -1 now। अब करो। अब अगर आप इसको प्रिंट करोगे तो आपको दिखेगा कि ये अब 0 नहीं रहेगा, ये एक्चुअली में अपनी वैल्यू को चेंज कर देगा। ये है कंस्ट्रक्टर का एक्चुअल काम। कंस्ट्रक्टर का सिर्फ एक काम होता है, ये आपके डेटा मेंबर्स या डेटा प्रॉपर्टीज की वैल्यू को इनिशियलाइज करने के काम आता है, जो आपने जनरली अभी किया है। आपने num1 की वैल्यू को डिफाइन किया, num2 की वैल्यू को डिफाइन किया, और ये भी याद रखिए जब आपने इसको डिफाइन नहीं किया था तो JVM ने इसको एक ऑलरेडी डिफॉल्ट वैल्यू से ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज कर दिया था। आप नहीं भी करते तो कर चुका होगा। इसीलिए डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को इसलिए बोलते हैं कि आपका JVM जो है ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाता है। The entire idea of JVM creating the default constructor is that your JVM assigns your data members some default value। इसका मतलब है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। If you want to override or change the values which your JVM provided, you can create a constructor for yourself। आप create constructor बना सकते हैं। इस कंस्ट्रक्टर को ध्यान से देखिए। इस कंस्ट्रक्टर में कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। First, just like sir said, if you are working on Java में the name of the constructor and the name of the class remain same, which is very nice. But important thing, very important thing, इन आप दुनिया की कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग उठा लीजिए, none of the ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, none of the constructor have any return type। किसी कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, नॉट इवन void। आप इसके आगे void भी नहीं लिख सकते हो। तो नो कंस्ट्रक्टर इन द वर्ल्ड, अगर आपने कोई कंस्ट्रक्टर बनाया है तो उस कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा, कुछ रिटर्न नहीं करेगा आपको। उसका सिर्फ एक काम है, वैल्यू को इनिशियलाइज करना, और वो वही करता है। So no constructor has no return types, not even void, please keep that in mind। अब इसी का दूसरा टाइप दिखा रहा हूं, ये तो हुआ डिफॉल्ट। इसी का एक टाइप और दिखा रहा हूं, which you call it as parameterized constructor, which essentially means कि अगर मैं जिस टाइम पे ऑब्जेक्ट बना रहा था उस टाइम पे अगर मैं इसको वैल्यू पास कर दूं तो, मीनिंग if you again go back and look at line number 13 or I should say 12 where I actually created the object, I could have passed the values here itself by marking it 100 and 200, let's say। तो मीनिंग कि मेरे टेस्ट के ऑब्जेक्ट में दो पैरामीटर्स आएंगे, let's name them A and let's name them B, and once I receive them I can then update the value of my num1 to be A and num2 to be B if I want। Take a minute, look at the code and figure out what I did। ध्यान से अपने कोड को देखिए और समझिए कि आपने क्या किया है। उसी के ऊपर मैं आपके सिंटैक्स को भी चेंज कर रहा हूं। दिस इज नॉट अ क्लास नेम एनीमोर, दिस इज अ कंस्ट्रक्टर। Now to समझिए कंस्ट्रक्टर, a thing which helps you construct something, जो आपको कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करता है। कंस्ट्रक्ट मतलब हम डेटा को कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करता है। तो कंस्ट्रक्टर का आंसर जानते हैं। Now either this could be default or it could be parameterized, depends on you। ये पैरामीटराइज। अब बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है, ध्यान सुनिएगा, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है, बहुत सारे डेवलपर्स को भी ऐसा लगता है कि अगर हमने कभी कोई पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना दिया
तो डिफॉल्ट नहीं बन सकता, दैट इज रॉन्ग। अगर हमने कोई पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बनाया है तो मैं इसी का एक वेरिएशन भी बना सकता हूं और एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। व्हाट डू आई मीन, लेट्स हैव अ लुक। मैं ऐसा भी कर सकता हूं, ये भी वैलिड है। ध्यान से देखिए मैंने क्या किया है, मैंने एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है और उस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है, मैंने कहा है टेस्ट क्लास। ये भी पॉसिबल है एंड इवन मोर इंटरेस्टिंगली ये भी पॉसिबल है ध्यान से देखिए अपने कंस्ट्रक्टर को, मैंने उसमें दो पैरामीटराइज और एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया है। व्हाट डू आई मीन बाय इट? अब आ जाओ के मेन मेथड पे। कहने का मतलब ये कि मैं अपने ऑब्जेक्ट, ध्यान से देखिएगा यहां पर, मैं अपने ऑब्जेक्ट को इन तीन कंस्ट्रक्टर में से किसी भी एक कंस्ट्रक्टर से बना सकता हूं। अब इस कंस्ट्रक्टर को देखिए जरा, अगर आप इस कंस्ट्रक्टर को देखें तो मैं टेस्ट को ऐसे भी बना सकता हूं, दिस इज आल्सो फाइन। मैं अपने टेस्ट 3 को ऐसे भी बना सकता हूं, दिस इज आल्सो फाइन। तीनों टेस्ट के ही ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन बनने के तरीके ये तीनों के अलग अलग हैं। एक बनता है उस कंस्ट्रक्टर से जिसमें आपने दो पैरामीटर्स पास किए हैं ए बी और दोनों की वैल्यू को सेट किया है। देन आपके पास एक कंस्ट्रक्टर ऐसा है जिसमें आपके पास कोई पैरामीटर नहीं है, सिर्फ एक प्रिंट स्टेटमेंट आती है। और एक कंस्ट्रक्टर आपने ऐसा भी बनाया है जिसमें आपने सिर्फ एक वैल्यू को सेट किया लेकिन दूसरी वैल्यू को सेट नहीं किया। एंड ऑल द थ्री आर वैलिड ऑब्जेक्ट्स, तीनों के तीनों वैलिड ऑब्जेक्ट्स। आप चाहो तो इन्हीं के नीचे आप प्रिंट करा सकते हो, आप इसको बोलो टेस्ट क्लास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, just to test if this is working fine or not। और यही प्रिंट स्टेटमेंट जो है मैं बाकी के दो कंस्ट्रक्टर में डाल देता हूं so that you should be able to see that this is a parameterized constructor with two arguments and then इसी को मैं कॉपी करके यहां नीचे लिख देता हूं। अरे ठीक है, सही है। अब जरा देखिए, आप जब इसको रन करेंगे अपने आउटपुट को देखिए जरा, तो पहला वाला है कंस्ट्रक्टर विद टू आर्गुमेंट्स। अपने आउटपुट को देखिए, पहला वाला लाइन से टेस्ट विद टू आर्गुमेंट्स, देन अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड देन अ टेस्ट क्लास विद कंस्ट्रक्टर पैरामीटर्स टू बी एग्जैक्टली वन। एंड लुक एट योर मेन, हाउ दैट मेन वर्क्स। और कंस्ट्रक्टर को समझिए, कंस्ट्रक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत कॉमनली इंटरव्यू में पूछा जाने वाला है। अब बस ध्यान ये रखिएगा कि ये तीनों काम एक ही क्लास में करना भी पॉसिबल है। A default constructor, a parameterized constructor, and in fact, multiple parameterized constructor is also very much. Multiple parameterized बना सकता हूँ। Any questions? No, sir. कितने लोग सॉर्टेड हैं यहाँ पर? कोई भी क्वेश्चन है प्लीज शूट, जस्ट डोंट से यस बिकॉज़ मैं बढ़ा रहा हूँ। अगर कोई जनरली कोई डाउट है, चीज समझ में नहीं आ रही, प्लीज शूट, बिकॉज़ अगर ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया कोई इनहेरिटेंस भी समझ नहीं आएगा। क्वेश्चन नहीं, कंस्ट्रक्टर समझना है। कंस्ट्रक्टर का काम क्या है? कंस्ट्रक्टर का सिर्फ एक काम है, इट्स टू इनिशियलाइज और गिव वैल्यूज टू योर डेटा मेंबर्स दैट यू हैव क्रिएटेड इनसाइड द क्लास। क्लास में आपने जो भी डेटा मेंबर बनाए हैं उनकी वैल्यू प्रोवाइड करने का काम आपका कंस्ट्रक्टर करता है। बस इतना ध्यान रखिए। अब ये है थोड़ा इंटरेस्टिंग, इस इंटरेस्टिंग पार्ट को देखिएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना है यहाँ पे। मैं आपके स्टार्टिंग के दो कंस्ट्रक्टर्स यहां से रिमूव कर रहा हूं। यहां पे सिर्फ एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर रख रहा हूं, एंड दैट पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर टेक्स टू वैल्यूज एंड सेट बोथ द डेटा मेंबर्स ऑफ द क्लास। क्लास के दोनों डेटा मेंबर्स को सेट कर देते हैं। ठीक, तो बहुत ही बेसिक सा कोड दिया है, ध्यान से एक बार कोड को देखो। टेस्ट क्लास
containing two properties, both integers, one constructor taking two arguments a and b and setting the value of num1 and num2 by a and b. बस यही काम करता है. कोई डाउट? अब आते हैं वापस से आपके इनहेरिटेंस वाले सेक्शन पे और थोड़ा सा इनहेरिटेंस को समझने की कोशिश करते हैं. अगेन आई एम 120% श्योर आप लोगों ने इसको पहले देखा जरूर होगा, पढ़ा जरूर होगा, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आएगा कि करता क्या है. थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये भी बहुत कॉमनली इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, वो डायरेक्टली पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय दिस कीवर्ड. अब ये कीवर्ड का मतलब देखिएगा कौन सा कीवर्ड है, कीवर्ड को बताता हूं. अब जैसे कि हम लोगों ने इनहेरिटेंस के बारे में बात करी, इनहेरिटेंस वाज एग्जैक्टली अ आइडिया वेयर we had one class, this class had certain properties, certain methods, or very same certain methods and certain properties I wanted to inherit in another class. मैं कोड में कुछ चेंज कर रहा हूं, उसको जरा देखिएगा. So let's name this class as A. Let's rename the constructor also to be A. And object creation के time पे let's call it object A. And then I have this constructor A here. So I have created a class A. Has its own properties, has its own method. Method बनाने के लिए भी हम लोग एक ऐसे एक generic सा एक method बना देते हैं यहाँ पे. Let's call it public void display. And I'm just gonna make a print statement here. I'm just gonna say class A is display. ठीक है? Awesome. Not a problem. अब ध्यान देखिएगा इस पर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. मैं आपसे पूछूंगा, लेट्स सी हाउ मेनी थिंग्स फिगर दिस आउट. मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, अलग अलग ध्यान से देखिए. सो व्हाट आई वांटेड टू डू इज, अब उस डायग्राम को देखिए. व्हाट आई वांटेड टू डू इज आई वांटेड टू इनहेरिट द प्रॉपर्टीज ऑफ क्लास A टू क्लास B इज व्हाट आई वांटेड टू डू. सो आई डिड द सेम एग्जैक्ट थिंग. मैंने वही किया. मैंने कहा मैंने क्लास B बनाऊंगा, उसमें क्लास A को इनहेरिट कर दूंगा. If you are coming from a C++ background, then in that case, how do you perform inheritance? Is by putting a colon. आप यहाँ पे colon बनाते हो और यहाँ पे लिखते हो A. Access modifiers. But in the case, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, in case of Java, this colon gets replaced by a keyword called extends. ठीक है? अब जिसे आता हो हाथ उठाइएगा. पहले तो मेरे को ये बताइए, ये लाइन में तो ऐसे दे रहा है. So Hold on. इसको आता है मान लो. सर, कौन सा एक्सेस मॉडिफायर? नहीं. तो why is this line giving me an error? ये मेरे को error क्यों दे रहा है भाई? मैंने तो बस inherit करी properties को. we haven't specified the type of. लो. बस तो कीवर्ड बता. हाँ? क्या यूज किया? लो. 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 कहीं लिखेंगे सिलेक्टेड? Yes. This is a problem which is given to you because of a keyword called a super keyword. अब पहले super keyword का मतलब समझिए. सुपर कीवर्ड का मतलब होता है कि अगर आप अब इसी कोड को देखो, अगर आपने कोई क्लास बनाई, फिर created a class which contains a parameterized constructor. In that case, if that class is being extended to another class, जैसे कि A class B class में extend हो रही है. A class में आपने parameterized constructor बनाया है, parent class में आपने parameterized constructor बनाया है, और उस parent class की properties को child class में access किया है. आप उसको तब तक इनहेरिट नहीं कर सकते जब तक चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को सेट ना करते. क्या बोला? फिर सुनो. Until the child class do not set the parameters of the parent's constructor, you cannot inherit the parent class. कब? If the parent class contains a parameterized constructor. जैसे कि क्लास A को अगर आप देखें तो क्लास A एक पेरेंट क्लास है और एक ऐसी पेरेंट क्लास है जिसमें एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एग्जिस्ट करता है.
अगर ऐसे किसी पेरेंट क्लास को आपने चाइल्ड क्लास में इनहेरिट किया तो चाइल्ड क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को सेट करने की. हाउ? बाय दिस you will be creating the constructor for B. You will be expecting the arguments for the parent properties, and then you will set those parent properties to the values that you receive back. By marking a keyword called super, और इस super keyword को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि behind the scenes actually में कर क्या रहा है, ये कर रहा है. को कॉल करेगा. This super keyword is extremely important. वो डायरेक्टली आपसे इंटरव्यू छूटते भी पूछ सकता है कि what do you mean by super keyword. Super keyword का इंपॉर्टेंस देखिए. Super keyword करता क्या है? If a class, a parent class containing a parameterized constructor is inherited to a base class, then it's the base class's responsibility to pass those parameters back to your base class. By calling the constructor of the parent class by using the keyword called super. Sir, उसमें आपको परफॉर्म करने की जरूरत है. C++ एक बहुत ही weird तरीके की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है. बहुत ही weird तरीके की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. उसको आगे हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो कंसीडर कोई भी कंसीडर नहीं करता. ठीक है. बट अगर आप यही चीज JS में देखें, पाइथन में देखें, रूबी में देखें, स्विफ्ट में देखें या किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में देखोगे, ये सुपर कीवर्ड आपको हर एक लैंग्वेज में मिल जाएगा, हर एक लैंग्वेज में, और एज इट इज मिलेगा. बस C++ छोड़िए भाई. मैंने वही कहा ना, C++ रेयरली somehow or the other वो जुगाड़ पे चल रहा है बस पूरा. somehow or the other क्लासेस बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, बस करते रहिए, जो चल रहा है. But again, when I call it an object oriented, that's not all. सुपर कीवर्ड को ध्यान से देख लीजिए. मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं फिर डिफाइन कर रहा हूँ. A class, a parent class has a parameterized constructor. You inherit that parent class to a subclass. Then the subclass has a responsibility to pass the parameters of the constructor of the parent class by calling the super keyword and passing those parameters. अब ऐसा भी हो सकता है, ये भी आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, कि base class can have their own functionalities if they wanted to be, and that is actually true if you see it that way. So ऐसा भी हो सकता था, बड़ा ध्यान से देखिएगा, कि आपके पास यहाँ पर दो फ्लोट वैल्यूज होती है. लेट्स कॉल दिस एज num3 and num4. ये num3 num4 को अगर आप देखें तो ये num3 num4 आर द प्रॉपर्टीज ऑफ क्लास B. एंड ऐसा भी वेरी मच पॉसिबल है दैट यू डू वांट टू सेट दीस वैल्यूज अप. तो आपको ऐसा भी कोड देखने के लिए मिल सकता है. डोंट गेट कंफ्यूज्ड ऑन दिस. Now I can set my num3 with C and I can set my num4 with D. पीडीएफ पढ़ दोगे? छोटे बच्चे तो एकदम अभी इस कोड को जरा एक बार ध्यान से देखिए. कोड क्या कर रहा है. अगर आप अपनी चाइल्ड क्लास को देखें तो ऐसा भी पॉसिबल है कि चाइल्ड क्लास में आपकी खुद की प्रॉपर्टीज भी हो. इफ यू हैव योर ओन प्रॉपर्टीज then you are also supposed to set those own properties by yourself. ये भी आपको खुद से करना पड़ेगा. So you are setting the values of num3 and num4 just by using a parameterized constructor. अब B का ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? B का ऑब्जेक्ट देख लो कैसे बनेगा. If I had to create the object of B, इसको जरा ध्यान से देखिएगा. If I had to create the object of B, I would use B, and in B I am supposed to pass 4 parameters. किस सीक्वेंस में होंगे पैरामीटर्स? A, then B, then C, and then D. A का टाइप क्या है? int. So I'll pass int value here. First parameter. Second, क्या होगा ये? डेटा टाइप क्या होगा? int. Next data type? Float. Next data type? Float. अब इस ऑब्जेक्ट में अगर आप देखो तो स्टार्टिंग की दो वैल्यूज पेरेंट की हैं और लास्ट की दो वैल्यूज आपकी खुद की चाइल्ड की है.
ए और बी जैसे ही आपको रिसीव हुआ वो ए और बी आपने अपने पेरेंट को पास कर दिया और फिर जो आपको सी और डी मिला उससे आपने अपनी खुद की वैल्यूज को सेट कर दिया। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है इंटरव्यू में और ये अपने दिमाग में अपने बैक ऑफ द माइंड में सेट करके रखिएगा, ये करना पॉसिबल नहीं है, सिर्फ जावा में नहीं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये करना पॉसिबल नहीं है। कि आप पहले खुद की प्रॉपर्टी सेट कर लो फिर बाद में जाके पेरेंट को पास करो, ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर आपने ऐसा किया तो भी आपका कंपाइलर आपको एरर देगा। तो आपका सबसे पहला काम चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को बनाते ही सबसे पहला काम होगा कि अपने पेरेंट की प्रॉपर्टीज को पास करना है, फिर आप अपनी प्रॉपर्टीज सेट करते रहो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट ऐसा नहीं होगा कि पहले आपने अपनी प्रॉपर्टीज सेट करी फिर सुपर कीवर्ड को कॉल किया, नहीं, पहले सुपर कीवर्ड ही कॉल होगा चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। And this is not just in Java, this is in every other programming language or in every other object-oriented programming language. So first, pass the super keyword or pass arguments to the super keyword, then set your own property if you feel like you want to do it. Then set your property. Questions any? Sir. If we have multiple constructor in time, then Yeah, obviously. for that, super keyword use to Exactly. Correct. बिल्कुल करेक्ट। भाई आपको प्रॉब्लम समझ में आया क्या बोला सर ने? सर ने कहा आपने बताया था कि पेरेंट क्लास में तो मल्टीपल कंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं, तो उन सारे मल्टीपल कंस्ट्रक्टर को पास करने की रिस्पांसिबिलिटी ही चाइल्ड क्लास की होगी, वो सारे कंस्ट्रक्टर एज इट इज बनेंगे चाइल्ड क्लास में। You do not have any turnaround. Yes sir. कंस्ट्रक्टर को पास करना रिस्पांसिबिलिटी रहेगी या फिर जो वेरिएबल हमें कंस्ट्रक्टर कॉल करके वैल्यूज को पास करना है हमारे रिस्पांसिबिलिटी। बिल्कुल। पर कंस्ट्रक्टर भी सिर्फ एक टाइप का होना चाहिए, पैरामीटराइज, कोई डिफॉल्ट का फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पेरेंट क्लास में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बने और जितने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बने उन सारी की सारी की वैल्यू सेट करेगा आपका चाइल्ड और सुपर कीवर्ड कॉल होगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा सर। Yes, for your parent. That's right. No, nothing. सुपर का भी एक काम, सुपर का एक काम और है इसको हम लोग थोड़ा सा लास्ट में करेंगे, बहुत एंड में लगेगा। अभी जस्ट कंफ्यूज नहीं हुए, बस आप सुपर कीवर्ड की फंक्शनैलिटी को देखिए, सुपर कीवर्ड करता क्या है। सर आपके एनीथिंग डाउट एनी? ऑसम। ये जो आपको इनहेरिटेंस मैंने दिखाया इसका आपको एक कॉमन नाम भी पता होगा, समथिंग यू कॉल इट एज सिंपल इनहेरिटेंस और सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। या तो कोड सामने देख लीजिए, ये सिंपल इनहेरिटेंस और सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। अब जो मैं कराने वाला हूं उसके बाद शायद आपको थोड़ा सा घुटना में दर्द हो सकता है, एंड इट्स एब्सोल्युटली फाइन। I am 120% sure majority of people would not have seen this before. Don't get confused. It's a very valid principle and it's used across object-oriented programming, specifically in organizations. थोड़ा ध्यान से देखिएगा. This can confuse you up. I'm telling you the program. Syntax देखिएगा बस आप. और इस syntax को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है? Ready? Yes. देखो. Hold up. Just look at the line that I just highlighted. Look at the left hand side of the equals and look at the right hand side of the equals. And figure out what are we trying to do. क्या करने की कोशिश हो रही है? Sir, we are passing the values in the construction of the child, and then it's passing to the parents. So only the parents. Look at the left hand side then. The other values are not being set. Only the parents variables are being set.
अब पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो मैंने हाईलाइट करी है लाइन, पहले मुझे इसका आंसर दीजिए कि ऑब्जेक्ट किसका बना है, चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना है या पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना है? पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना है। हाँ, ये पेरेंट नहीं है भाई, यार ये लिखा है आगे। इसलिए मैंने कहा लुक एट द लेफ्ट हैंड साइड। दिस प्रोसेस इज वेरी कॉमनली, पहले उसको बता देता हूँ, इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, उन एक्सेप्शंस को भी थोड़ा ध्यान से देखेंगे। आप पहले ये समझिए इसको बोलते क्या है, अगर आप खुद से पढ़ना हो एक बार खुद से पढ़ सकते हैं इसको। इस कॉन्सेप्ट का नाम है डाउनकास्टिंग, और जस्ट टू बी इवन मोर प्रिसाइज, ऑब्जेक्ट डाउनकास्टिंग। And what does this downcasting says? It means you are trying to create the object of the parent by using the constructor of the child. This process को समझो. This process means creating the object of the parent class by using the constructor of the child class. This entire process is called as object downcasting. इसके कुछ रूल्स हैं, इसके कुछ रेगुलेशंस हैं और इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगर इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर वी लीव, आप इस सिंटैक्स को प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिए। लेफ्ट साइड को देखिए और राइट साइड को देखिए और ये समझिए कि लेफ्ट साइड ऊपर भी सेम लिखा हुआ है, नीचे भी सेम लिखा हुआ है। आपने जब ऑब्जेक्ट A1 बनाया और जब आपने ऑब्जेक्ट A2 बनाया, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड को देखो एग्जैक्टली सेम है। The only thing changed is how we created the object. In the first line, if you look at line 23, the object of A was created by the constructor of class A. But if you look at the next line, the object of A was created by the constructor of B. That's the only thing. And this was only and only possible because B was a child class to A. अगर आपके पास इनहेरिटेंस हो रहा है तो आप पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना सकते हो पेरेंट की कंस्ट्रक्टर से, या आप पेरेंट का ऑब्जेक्ट बना सकते हो चाइल्ड की कंस्ट्रक्टर से। दोनों थिंग्स पॉसिबल। अब एज आई सेड, इसके कुछ रूल्स होते हैं और इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, उसको भी हम लेटर ऑन जाके बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिफोर वी लीव, इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू हैव टू आस्क, please shoot. Related to classes, abstraction, encapsulation, access modifiers, constructors, default, parameterize, super keyword, anything that we have to discuss, please shoot. अब मैं वही बताऊंगा ना, यूज इसके बहुत है, इसके बहुत यूज है और इसका मेजर यूज वही है जो इसका एक्सेप्शन है। इसके एक्सेप्शन को जब मैं दिखाऊंगा तो आपको खुद समझ में आएगा कि ओह, दिस मेक्स अ लॉट ऑफ मोर सेंस। But ध्यान ये रखिएगा कि we are creating the object of the parent. Either you create the object of the parent by the parent's constructor, or you create the object of the parent by child's constructor. Both is pretty much possible. Again, this is not only a concept in Java. This happens in C++ also. This happens in Python also, JS also, Swift also, Ruby. Every object-oriented programming में होता है। Any questions? Please shoot. No. Reverse is not possible. आप इसका उल्टा नहीं कर सकते। There is no concept called as object upcasting. Object upcasting टाइप का कुछ नहीं होता। कहीं आप सोच रहे हो कि मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा चाइल्ड का यूजिंग अ कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट, सॉरी टू से दैट इज नॉट पॉसिबल। अपकास्टिंग पॉसिबल नहीं है, डाउनकास्टिंग पॉसिबल है। अब खुद सोच के देखना भाई, थोड़ा दिमाग लगाओ। आपके पास एक बहुत बड़ा सा वुड है, उस वुड से आपको फर्नीचर बनाना है, बना सकते हैं? हाँ, अब उसी फर्नीचर का आपको वापस वुड बनाना है, दैट पॉसिबल? सेम इज द थिंग। आप बड़ी चीज से छोटी चीज बना सकते हो, छोटी चीज से बड़ी चीज कैसे बनाओगे? ऑब्जेक्ट अपकास्टिंग कुछ नहीं होता, ऑब्जेक्ट डाउनकास्टिंग बिल्कुल होता है। और इसी डाउनकास्टिंग के अंदर इसकी बहुत एक्सेप्शंस भी हैं, एक्सेप्शंस को भी थोड़ा डिटेल में देखेंगे और